Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is Hamna Binti Shehzad. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 2 का टाइटल है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट सीड जर्मिनेशन होती है। सीड जर्मिनेशन जैसे कि आप पेज नंबर 21 में फिगर 2.5 पे देख सकते हो एक डायग्राम के थ्रू। अब यहाँ पे इस डायग्राम में एक सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड में हमारे पास प्लूम्यूल है, सीड कोट है जो कि आउटर कोटिंग है, देन रेडिकल है और एक ऐसा एरिया है जिसने सीड को के फूड को स्टोर करना है। अब सीड जर्मिनेशन क्या होती है? जब सीड किसी भी सॉइल के अंदर हम दबाते हैं और वो सेटल हो जाता है, यानी कि उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, लाइट, वाटर, एयर और सूटेबल टेम्परेचर मिल जाता है, तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो बेसिकली सीड के थ्रू प्लांट अपना फूड जो है वो स्टोर करता है ताकि नए प्लांट को वो ग्रो कर सके। ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन में जैसे कि सीड कोट तो हमें पता चल गया कि ये आउटर कोटिंग ऑफ अ सीड होगी, अंदर वाला एरिया ने सीड को फूड को स्टोर करने में मदद देनी है। अब यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखो पेज 21 पे डायग्राम 2.5 में, तो यहाँ पर प्लूम्यूल है और रेडिकल है। अब प्लूम्यूल क्या है? प्लूम्यूल ग्रोज फ्रॉम शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। अब प्लांट के ऑर्गन सिस्टम थे, एक रूट सिस्टम था और एक शूट सिस्टम था। शूट सिस्टम किसी भी प्लांट में क्या काम करता है? वो बेसिकली फूड बनाता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट तरह से, तो बेसिकली इसने शूट सिस्टम से ग्रो करना है। और रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम से ग्रो करेगा, यानी कि रूट सिस्टम जहाँ से सॉइल से हम मिनरल्स और वाटर को लेंगे। ये प्रोसेस था, हमारी स्टेजेस थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब हम एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from one anther of stamen to the stigma of the carpel is called pollination. Pollen grains can come from the same flower or from another flower of the same kind of the plant. Self-pollination. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower on the same plant is called self-pollination. Pea, tomato, rice plants reproduce by self-pollination. Cross-pollination. The transfer of pollen grains from the anther of one plant to the stigma of the flower on another plant of the same kind is called cross-pollination. Mango, orange, apple, papaya trees reproduce by cross-pollination. Page 19. How are flowers pollinated? There are two main ways of pollination in the plants, by insects and by wind. Insect pollinated flowers. Insect visit flowers to suck nectar. During this activity, pollen grains are stuck to their bodies. These pollen grains are transferred to the stigmas of the other flowers when the insect visits them. Wind pollinated flowers. Pollen grains are detached from the anthers due to wind and falls on the stigma of the carpels in the same or different flowers. नाउ पेज नंबर 19 एक्टिविटी है एक। यहाँ पर पॉलिनेशन इन अ प्लांट को आपने अपनी टीचर की मदद से करना है और डिस्कस करना है कि इसके कितने मेथड हो सकते हैं, और किसी एक प्लांट को पकड़ के ऑब्जर्व करना है कि इसमें जो पॉलिनेशन का मेथड है वो कौन सा है। नेक्स्ट पेज नंबर 20 फर्टिलाइजेशन. The surface of the stigma in a flower is sticky and a pollen grain stick to it. Here, a pollen tube grows out of each pollen grain. Two sperms are present in this pollen tube. The tube grows downward through the style and enters the ovary. Pollen tube finally enters an ovule and releases its sperms in it. One of the sperms combines with an egg to form zygote. The other sperm combines with another cell to make store of the food. Changes after fertilization. After fertilization, several changes take place in the flower. The sepal, petals and stamens dry up and fall off. The zygote inside ovary develops into embryo. Ovule becomes seeds. The ovary develop into a fruit and fruit protect the seeds. Seed germination. When a seed settle in the soil and find favorable condition for growth,
The embryo and the seed use food stored to grow in a new plant. This process is called germination. A seed requires air, water and suitable temperature to germinate. Water helps the seed coat to swell up and break. Page 21. Radicle of the embryo grows from the root system of the plant. Plumule grows from the shoot system of the plant. In this way, a seed grows into a new plant. Activity 2.3 यहाँ पर germination of seed की activities हैं. आपने कुछ मटेरियल लेना है, ग्लास जार, पेपर टाल्स ले लें और किसी भी बीन के सीड ले लें. यू कैन टेक लाइक एनी बीन ऑफ योर चॉइस. उसको आपने जार में लगाना है सॉइल के साथ और ऑब्जर्व करनी है जर्मिनेशन ऑफ सीड की डिफरेंट स्टेजेस को. नाउ एक्टिविटी 2.4 अपनी टीचर की मदद से क्लास में ये आप ग्रुप एक्टिविटी की सूरत में ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. और यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट की. एक अडल्ट प्लांट बनने के लिए पॉलिनेशन होता है, फ्रूट विद द सीड होता है, जर्मिनेशन होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होती है और स्प्रेडिंग होती है. आपने इनके चार्ट्स बनाने हैं अपनी टीचर की मदद से जो कि डिफरेंट स्टेजेस को शो करते हैं. जी टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन. आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.